Hello students, welcome in my channel. Students, in the last lecture we are discussed about the electromagnetic effect. In that second important effect, that is the resonance effect, we have started, correct? Now you come to know that what is the resonance effect, and in the resonance effect we already discussed a few points related to the resonance effect takes place in particularly pi bonded system, conjugated system, double headed arrow we have to show, resonance. So such type of discussions already we are completed, and we are proceed actually the types of the resonance. So resonance is also known as the mesomeric effect. Okay, so it is represented by capital letter R or capital letter M. So there are two types of the resonance effect that actually we are going to discuss. So one is the plus R resonating effect and another one is the minus R resonating effect. Already we have discussed that how this particular effect develop in the system and in the whatever substituent groups or functional groups which is present on the conjugated system, correct? So electron donating and electron withdrawing particular effect is going to show in the systems and with respect to the group or substituent, and that actually we have to discuss once again in today's lecture. So let us start our topic, that is the resonance effect. So student, so you know that there are two types, plus R effect is there and minus R effect is there. So plus R means electron donating resonating effect, electron donating. Minus R means electron withdrawing resonating effect. Okay, so this is the simple concept actually, and this concept how we are discussed. See here, benzene ring is there, and in the benzene ring we discuss about one important discussion. Consider NH2 group is attached, it is electron donating group. So this is the system and NH2 group is the electron donating group towards the system. That's why here plus R effect is going to see here. Plus R means electrons is going to donate towards the system, because this is the system that is a conjugated system. Okay, conjugated system already we have discussed. There is alternate, double and single bond system is there. So this electrons, nitrogen having lone pairs, this electrons is shifting towards this system. Ultimately the resonance is going to see in your compounds. Okay, that we are going to discuss afterwards. Now this shows the plus R effect. Now same examples, benzene ring is there, but now here instead of NH2 I am going to take NO2 group. So if I am going to take the NO2 group, then instead of donating the electron, nitrogen is attached with the oxygen. Oxygen is the electron withdrawing groups, correct? So it attracts the electrons towards itself. So ultimately the electrons is going to shift from the particular system to the group. Okay, so electrons actually taking from the system, that particular group. So see the effect, electron is donating and electrons is taking from the system. That's why here minus R or electron withdrawing effect we can see in this particular example. So this we are going to see with the help of proper resonating structures, how these particular groups is very important. Before going to see the details about this, so you must know two things, and that is very important, that I am going to discuss with you here, and after that we are going to see properly all these compounds in details. Now see student, this is a benzene ring. Okay, so everybody knows this about this, correct? And we draw the 2-3 structures of the benzene related to their resonance hybrid structure also, correct? And sometimes we are going to show the benzene ring in this way also, correct? So this is also benzene. Okay, now if any substituent is attached, consider X is the substituent which is attached on the benzene. So with respect to this substituent, if you are numbering the benzene 1 2 3 4 5 and 6, like this number is there on the benzene. So with respect to this substituent, number 2 position and number 6 position is known as the ortho position, keep in your mind, very important. So this position is known as the ortho position. Then number 3 and number 5 position
is known as the meta positions. This is the meta position, is also meta position. Okay, and number 4, this position is known as the para position. This position is known as the para positions. This knowledge you must know. You must know these things, then we can proceed for this particular effect. So after getting all these points, which is very important, see 2 and 6 positions is the ortho positions with respect to that substituent or functional group, whatever it may be there. Okay, so 2, 6 is ortho position, 3, 5 meta positions, and 4 position is the para positions. Very important, these things you have to keep in your mind. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दिस थिंग्स. तो बच्चों ये ध्यान में ही रखना है आपको कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप्स आपके बेंजीन रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो उसके रिलेटेड्स हमें पोजीशन सिलेक्ट करना आना चाहिए. तो इधर अगर आपका फंक्शनल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट इधर है तो उसके रिलेटेड्स वो नज़दीक के उसके बाजू में का एडजेसेंट उसके कार्बन जो रहेंगे तो उसको आर्थो पोजीशन कहा जाता है, आर्थो. और फिर ऐसे नंबरिंग दे दी आपने तो 3 और 5 पोजीशंस पे मेटा पोजीशंस कहा जाएगा और डायरेक्टली उसको अपोजिट पोजीशन जो रहेगा वो प्यारा पोजीशंस कहा जाता है. याद रखना है ये, क्योंकि ये हमें बाद में बहुत काम की चीज़ है, यह हमें बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, आर्थो मेटा और प्यारा. और ये सिम्बॉलिकली हम ओ से, इसको एम से और इसको पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं. स्मॉल ओ, स्मॉल एम, स्मॉल पी से हम इसको आइडेंटिफाई के लिए लिखते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए ओ मीन्स आर्थो, एम मीन्स मेटा, पी मीन्स प्यारा, ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए. फिर जाके आपको ये रेजोनेटिंग इफेक्ट और भी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है. तो चलिए प्लस आर इफेक्ट देखते हैं अभी. प्लस आर इफेक्ट, तो फर्स्ट जो इफेक्ट हमने डिस्कशन में चालू करना है अभी तो वो है प्लस आर इफेक्ट आपका. तो व्हाट इज द प्लस आर इफेक्ट? ऑलरेडी प्लस आर को प्लस एम इफेक्ट भी बोला जाता है, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट. तो इसमें होता क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि सिस्टम और वो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम को. आ रहा है समझ में? तो देखिए कौन से पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं इसका थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए. तो जनरली NH2 ग्रुप रहेगा आपका, NH2, NHR ग्रुप रहेगा आगे, ठीक है, या फिर आपके पास OH ग्रुप रहेगा या O- ग्रुप भी रहेगा. ऐसे जो पर्टिकुलर ग्रुप्स रहेंगे ये आपके सिस्टम को इलेक्ट्रॉन से डोनेट करने वाले ग्रुप्स है. तो चलिए अभी एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं. ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के पास है अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड, इसलिए उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा गया है. और हमने लिया NH2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो देगा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स. तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ए इलेक्ट्रॉन्स अभी इसमें हिस्सा लेंगे रिएक्शंस में और फिर ए इलेक्ट्रॉन्स देंगे. इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स देगा. तो इधर आपके जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ये जो कार्बन इधर बैठा है, कार्बन कितने हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको. ये सब कार्बन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन इधर लगाना है आपको. वो हम तो एक्चुअली दिखाते नहीं, लेकिन आपको समझ में आने के लिए मैं हाइड्रोजन भी दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है. अभी ये तो जो कार्बन है ऑलरेडी टेट्रावैलेंट हो गया है इधर, करेक्ट. ये 2 बॉन्ड 3 और 4, तो ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंट, इसके पास हाइड्रोजन नहीं आएगा. अंडरस्टैंड, ये समझ में लेना है पहले, क्योंकि उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, ठीक है. नाउ अभी ये नाइट्रोजन ने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इधर, तो क्या बनेगा आपका, रेजोनेंस निकालना है. डबल हेडेड एरो से हम दिखाएंगे और आगे जाएंगे फिर स्ट्रक्चर निकालेंगे. तो अभी देखिए मज़े की बात, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आ गया डबल बॉन्ड इधर, बराबर है. तो ये डबल बॉन्ड इधर आने के बाद में क्या होगा, ये कार्बन ऐसे ही छोड़ेगा क्या, ये कार्बन तो पेंटावैलेंट हो गया, अभी कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा ना. ऐसा अगर देखिए काउंट कीजिए आप नंबर ऑफ कार्बन और उसके रिलेटेड बॉन्ड अगर काउंट किए आपने तो आपको पता चलेगा. मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा अभी इधर, ठीक है. तो इधर देखिए ये कार्बन तो पेंटावैलेंट हो गया, तो अभी ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे के कार्बन पे शिफ्ट कर देगा. आ रहा है समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे. तो ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है. जो पाई बॉन्ड वीक होता है आपको मालूम है वो लैटरल ओवरलैप से बना हुआ होता है, वो ईजिली ब्रेक होता है और ये टूट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे. आ रहा है समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी जब ये नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है.
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर से शिफ्ट हो गए, बराबर है, तो डोनेट कर दिए, तो डोनेटर पे प्लस चार्ज आता है, आपको मालूम है ये। तो ये चीज़ें जरूरी है आपको मालूम होना, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने के बाद में हम क्या दिखा सकते हैं, अभी मैं यही स्ट्रक्चर एक्चुअली इधर दिखाना था मुझे। तो ये देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए अभी, ठीक है। तो ऐसे वो जो दिखा रहा था, अभी इधर क्या चार्ज आएगा, इधर तो माइनस आ जाएगा फिर अभी, ठीक है। तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे, तो ये रिच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जब हो जाते तो क्या करेगा वो बंदा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इधर करेगा, बराबर है। जो कि मैंने आपको बताया इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन्स होते हैं, याद रखिए ये चीज़, मैं बार बार नहीं बताऊंगा अभी। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे जाएंगे तो आगे क्या पता चलेगा आपको, ये बॉन्ड इधर बन गया, ठीक है। देखिए आगे का स्ट्रक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। इधर बॉन्ड बनेगा अभी, ठीक है। तो इधर बॉन्ड बनने के बाद में ये जो है वैसे ही रहेगा, तो ये प्लस चार्ज भी रहेगा इस पर। और ये जो बॉन्ड है अभी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन है, इधर एक कार्बन है, और ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। अभी ये जो कार्बन है इसके पास ऑलरेडी इधर कितने हैं, 2, बराबर है। इधर एक हाइड्रोजन है, बराबर है। तो ये कार्बन के पास अभी कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और एक 5वां बॉन्ड बन रहा है, बराबर है। ये ध्यान से देखिए कैसे बन रहे, 1 2 3 4 और ये 5, बराबर है। तो ये बॉन्ड टूटने वाला अभी, फिर एक बॉन्ड तो टूटना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास 5 आ गए, तो ये टूटेगा, आगे जाएगा। तो आगे का रेजोनेंस आपको ऐसे मिलेगा। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही मालूम होना चाहिए आपको। फिर आगे ये तो ऐसे ही रहेगा, NH2 प्लस रहेगा, इधर प्लस चार्ज आएगा ऊपर में, और ये ऐसे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इधर हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। आ रहा है समझ में। अभी फिर से क्या होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये देगा इधर देने के बाद में अल्टीमेटली ये निकल जाएगा, आगे जाएगा। अभी तो प्रोसेस समझ में आया होगा अभी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये ऐसे इधर हो गया, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उधर है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, NH2 आ गया इधर। और देखिए बच्चों इधर ठीक से, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर आपका इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए। अभी क्या होगा, आगे और भी इंटरेस्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि वो दे सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो ये जैसे इधर आएगा तो ये कार्बन वाला की फिर वैलेंसी पेंटावैलेंट हो जाएगी, और ये फिर नाइट्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपको फाइनल स्ट्रक्चर में क्या दिखाएगा बच्चों, देखिए ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये नाइट्रोजन की तरफ फिर से इलेक्ट्रॉन्स अपने आ गए, उसने लोन पेयर ले लिए, और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बन गए। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लास्ट स्ट्रक्चर आपका बन गया, और ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था, बराबर है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको, तो देखिए NH2 था, NH2 है, सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हो गई उसमें, बराबर है। आपको मैंने नंबरिंग इसलिए सिखाया, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर 1 और 2 के बीच में बॉन्ड था, इधर 2 और 3 के बीच में, इधर 3 और 4 के बीच में, इधर 4 और 5 के बीच में, इधर 5 और 6 के बीच में, इधर 1 और 6 के बीच में। अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है ये मालूम होना। तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के कैसे सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर ही है ये भी। और इसका नाम क्या है कंपाउंड का, एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन। ये दोनों कंपाउंड सेम है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग पोजीशंस अलग दिखाई है, बराबर है। और फिर हमने ऑलरेडी देखा है कि हम सर्कल भी दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते रहेंगे। अभी फिर इसके बाद में ऐसा स्ट्रक्चर हम रेजोनेंस होगा तो ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ये तो कंटिन्यू चालू होने वाला है। तो इधर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं आपके सिस्टम को एक ग्रुप ने, तो जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऐसे हो रहा है जिसमें हमें रेजोनेंस मिल रहा है, और फाइनली हमें फिर से वैसे ही कंपाउंड मिल रहा है। सिर्फ उसमें चेंज क्या हो रहा है, आपका ये डबल बॉन्डेड सिस्टम जो हो रहा है तो उसमें पोजीशन चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर प्लस आर इफेक्ट। सो प्लस आर इफेक्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे, और फिर जब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मिल रही है आपको, सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको मालूम होना। तो पोजीशंस कौन सी पोजीशंस पे है, ये ऑर्थो पोजीशंस है, ये मेटा पोजीशंस है, ये पैरा पोजीशंस है, और फिर आपको इधर आर्थो पोजीशंस में
मिला। तो इधर एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए तो आपका निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं उसको, हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशंस पे ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, क्योंकि -4 ऑर्थो पोजीशंस पे देखिए, पैरा पोजीशंस पे देखिए और फिर से ये ऑर्थो पोजीशंस पे है, तो मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए तब उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते वक्त ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक। तो अभी बचा है इसमें माइनस आर इफेक्ट। तो बच्चों देखते रहिए अपना चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको माइनस आर इफेक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।